चलो स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? अभी थोड़ा लैग करेगी। इट विल बी ओके विद इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, सो मेंबर्स आर स्टिल जॉइनिंग। ग्रेट। कीप ऑन शेयरिंग गाइस, कीप ऑन शेयरिंग। एक बार चैट में बता दो कि स्क्रीन वगैरह सबको विजिबल है, ऑडियो प्रॉपर आ रही है, कुछ अरेंजमेंट्स चेंज तो नहीं करने हैं। ओके, गुड। सो लेट्स स्टार्ट। वाज द पीपीटी विजिबल? सबको दिख रही थी पीपीटी? बिकॉज नेटवर्क इश्यूज कभी भी आ सकते हैं। आई एम लीविंग नो चांस। ओके, गुड। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर। जो रिपीटर्स होंगे और जो फ्रेशर्स होंगे, आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दैट एसएसबी इंटरव्यू कोई चीज होती है ना? सो चलो पता करते हैं कि होता क्या है। जो टर्म है एसएसबी, द टर्म एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. It is an organization that assesses the candidates for becoming officers into the Indian Armed Forces. The word Services Selection Board tells you whatever is SSB. It is a board that selects you for services. Okay, what it how it selects you? It evaluates the suitability of the candidate for becoming an officer using a standardized protocol of evaluation system, which constitutes personality intelligence tests and interviews. Okay, the tests are of both types, that is written as well as practical based test. Coming to the panel, I think more are joining. Great guys. We are here with 35 members. I'm really happy to see कि अब हमारे सनातन कोर्स की फैमिली अच्छी खासी ग्रो कर रही है, because we are planning to do very big things for you, and believe me, it all will be worth it. Okay, keep connected, stay connected, and the best thing is you do not have to pay anything. We just want your support, that's all, as well as your efforts. Our fees is you clearing the exam and interview respectively. Let's continue with the class. The panel of assessors in the SSB procedure is that there are three officers present. The first one is psychologist, the other is GTO, that is the group task officer, and the third one is the third one is the interviewing officer. The psychologist may or may not be directly from the armed forces. He may be a civilian, she may be a civilian, but that's none of your concern. Okay, there are total 13 service selection boards across India for Army, Navy, and Air Force respectively. Reporting day. So this is what the view would look like on a reporting day. Huge number of candidates will be present with their luggages and dressed formally like a gentleman, and like and cadet, as I should say. Okay, what happens on the reporting day? Now, on the reporting day, you have to report according to the SSB call letter that you will be provided a few days ago on the Join Indian Army website. It contains all the information regarding what documents you need, what attire you should have, and what other things you should bring. In hope to complete the SSB, in hope to spend 5 days there. On the very same day, candidates are made to sit in the testing hall where they have to present their educational documents for verification and are allotted a number called chess number.
Okay, by which they will be able to identify the candidates throughout the process. Now, for freshers, I would be telling what chess number is. See, from the second day itself, there would be need of communication between you and the other selected candidates. So it is not quite reliable to know and learn everyone's name. So that's why you are given chess numbers. Chess numbers are used to identify a person. If I have to call another person, I need not know his name. I can just call him by his chess number, because chess number is compulsory to be known throughout the assessment. A briefing about the schedule, various tests, and general instructions should be given. The CHM, or it might be an officer present there, who would be presenting you and briefing you about the schedule, about the test and general instructions. Now, an important thing on this slide is that educational documents for verification. Now, guys, see, you all are aspiring to become an officer, right? An officer is not a clumsy person who does not properly read what instruction he or she has been given. So, he or she should not forget any kind of document that is required on the reporting day. It shows clumsiness. It shows lack of focus. Okay, people get document out, and you must understand that is a very bad thing. On one hand, you are going for to become an officer, and second, you cannot even manage your documents. Right? That is a very crucial part you need to take care. Now, on the reporting day itself, the screening process starts. In the screening process, there are two phases. The first phase is the intelligence test, that includes two types of tests, verbal and non-verbal. Now, they are generally as the normal test, normal intelligence quotient test conducted in any admission entrance exam. These tests include grammar, verbal analogies, synonyms, antonyms, sorry, meaning of words, idioms, and structure of language, critical reasoning, verbal deductions. These come under the verbal intelligence issues and questions. Coming to the non-verbal intelligence, they might include a series of pattern and figures. You have to identify the pattern and choose the right option from the given answer. The set of questions might look like this, that is visible on the left hand side of the slide. Understood? Now there are a huge number of practice sets present on the internet. If you guys want, you can tell in the Telegram or through any of the admin. You can either message me. When we will bring the workshop, you will be provided with every kind of uh, document, every kind of file, every kind of book you need. You need not worry about that. The second one is screening process. That is the picture perception and description test. As the word says, you have to perceive a picture and describe the same, and it all comes under this test. After the OIR, the candidates have to go through a PP and DT, that is picture perception and description test. In this test, candidates are shown a picture and asked to write a short story based on their perception of the picture. After that, candidates are made to sit in the group and asked to narrate story one by one. Okay. After all the candidates have finished narrating their story, the group is expected to discuss and arrive at one common story. All candidates have undergone screening test. The result of test is declared. Qualified candidates are retained for stage 2, and others are allowed to return home on the same day. एक बार मैं देख लूं. हाँ, some more people wants to join, right? So समझ आ रहा है कि सबको? बता दो एक बार. Should I bring some changes? बता दो चैट में कुछ इश्यूज हो तो. Okay, man, I will speak in Hindi in between. No issue. Don't worry.
चलो भाई चलते हैं वापस। बात आती है पीपीडीटी की। इसमें जो लिखा है इसे दोबारा बता देता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ अ फोटो। सो तुम लोगों को इस सेमी सर्कुलर मैनर में बिठाया जाएगा, राइट? These will be your assessors. These are the three officers that will be assessing you and taking your PVDT. Now OIR के मिलते ही जैसे ही OIR कंप्लीट हो जाएगा, वहीं के वहीं मोस्टली ये होता है कि वहीं के वहीं दिखा देते हैं, you will be given, you will be shown a picture and on behalf of that there is a certain pattern, एक तरीका होता है स्टोरी लिखने का PPDT में. You will get to know about that, don't worry. अच्छा, one important information I would like to tell you कि ड्यूरिंग दिस क्लास, थ्रू आउट दिस क्लास, फॉर फ्रेशर्स स्पेशली, एक एक नहीं कई सारे डाउट्स आने वाले हैं, राइट? थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ कि कई सारे डाउट्स आने वाले हैं आप सबके मन में. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है? कोई मैं क्या, देर इज नो वन दैट कैन एक्सप्लेन दी होल एसएसबी प्रोसेस इन डेप्थ in a single class. Okay, it is an introductory part. Your common doubts will be taken. There may be chances कि issues आए, but you need not worry about. जब तक आप फौजी कैंपस के साथ हो, है ना, every kind of issue will be resolved. Don't worry. You will be made sit like this in a semicircular manner. Your sheets will be taken before this, and then you have to narrate your story one by one. After the narration starts from the first, let's say it starts from here, okay, and it ends with this guy, that is 24. See, you can see the number 24 written. This is a chess number. See, now I need not know his name because I know that he is chess number 34. So that is why, that is the significance of chess number. As soon as the screening process completes, as soon as the narration completes, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है. नाउ लेट मी रिजॉल्व यू विद अ बिटर ट्रूथ. होप, उम्मीद करी जाती है कि डिस्कशन फ्लुएंट जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू गिव देयर पॉइंट्स, है ना. इट माइट गेट अ लिटिल क्राउडी, बट नो इश्यूज. क्राउड में से भी बच्चे निकल जाते हैं. यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. यू विल गेट टू लर्न अबाउट दैट. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यू आर सेंट फॉर लंच, और देयर इज अ चांस कि रिजल्ट सुनाने के बाद लंच करवाएं. वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है. और उसके बाद आपके रिजल्ट्स बता दिए जाते हैं. जो अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने परफॉर्म अच्छा करा होता है रिस्पेक्टिवली दोनों में, वो रोक लिए जाते हैं फॉर द नेक्स्ट एसएसबी प्रोसीजर. and from then the first day ends and we will start now from the day 2. अब day 2 से start होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की देखो बात ये है कि only the psychological tests are there in which you have to write and write and write and write. Okay, and the best and the worst part is that you do not know what you have written and what kind of impact it would give on the officer, on the psychologist. Psychological testing include 4 type of test. इसमें 4 टाइप के टेस्ट होते हैं. The first one is VAT, the word association test. In this test, candidates are shown 60 words one after the other and are expected to make short sentences using the word shown. 15 seconds are given for each word. ऐसा तो नहीं आता जैसे दिख रहा है, मैंने फिर ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, बट 15 सेकंड्स के इंटरवल पे फ्रीक्वेंटली बड़ी स्क्रीन पे आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा. यू आर सपोज टू राइट अ शॉर्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द थॉट, उस थॉट पे बेस्ड जो उस वर्ड को पढ़ते ही आपके दिमाग में आता है ना. फॉर एग्जाम्पल हीट है, ओके, हीट आ गया. अब हीट में तुम्हारे दिमाग में जनरली आएगा इट इज टू मच हीट इन द मंथ ऑफ जुलाई, इज टू मच हॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज साइकोलॉजी की बात अलग है.
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हियर एंड्स योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. द नेक्स्ट टेस्ट इज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, known as TAT. In this test, candidates will be shown 12 pictures. One by one. One picture would be shown for 30 seconds. Then it would be removed from your screens, and then you are supposed to write a story in the next 4 minutes based on the photo given. For example, let's take example of this photo that is present here. Now the first impression. Now see, in the TAT and PPT as well, observation is very important. From observing this picture, you would get an idea that कि ये भाई गांव का एरिया है, पेड़ दिख रहा है, झोपड़ी टाइप दिख रही है, लोगों ने जो फार्मर्स अटायर मेनली माना जाता है वो पहन रखा है, इनके कमर पे, इनके साइड में यहाँ पर एक, इट माइट बी अ डॉग, इट माइट बी अ शीप, है ना, एंड दिस पर्सन काइंड्स ऑफ लुक लाइक मेन कैरेक्टर. So you can make a story around him solving any issue, right? That is completely up to you. We will discuss that later in our workshop. Stay connected, everything will be resolved. The third test of the situation reaction test is SRT, situation reaction test. As the word suggests, जैसा word बताता है, you will be given a certain situation and you are supposed to give response accordingly what you will do in real life if such situations comes upon you. है ना, आपके सामने कोई भी सिचुएशन रख दी जाएगी. फॉर एग्जांपल आपके सामने रख दिया कि आप जा रहे हो ट्रेन में और आपका वॉलेट खो गया है और वॉलेट में टिकट था, है ना, अब क्या करेंगे? देयर आर मल्टीपल आंसर्स टू एन एसएसबी, टू एन एसआरटी. ओके, everyone's thinking is different. There are multiple answers to a single SRT, and no one knows it if it's good or bad, right? Coming up to the fourth task, that is the SDT. Okay, I have not written here SD about SDT because there is no need actually. SD, self description test. अच्छा, आप SDT क्या है, तो इसके लिए मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाता हूँ, देख लेता हूँ कुछ और इश्यूज तो नहीं है. Someone wants to join. Okay, सही चल रहा है, समझ आ रहा है, किसी को कोई इशू बताओ. कोई इशू चैट में बता दो भाई. लैंग्वेज चेंज करना हो, कोई पार्ट समझ ना आया हो, नो इश्यूज, फटाफट ओ आया कर दो. अब बात आती है एसडीटी की, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. एसडीटी होता क्या है कि आपको अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बताना होता है, ठीक है. इट माइट लुक फनी बट यही सच्चाई है. सर ग्रुप डिस्कशन स्टोरी पे होता है, हाँ भाई, जो स्टोरी बनाई है उसको आपको कॉमन कंक्लूजन बनाना होता है, वो ही डिस्कस करना होता है वहाँ पे, है ना. बात आई एसडीटी की, तो आप सबको जो है अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना पड़ता है. उसमें लिखना होता है, यू आर गिवन सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फैमिली थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स टीचर्स थिंक अबाउट यू. और उसमें आपको कहना होता है, माय पेरेंट्स थिंकिंग इज आई एम अ वेरी obedient kid, I'm a very good son, my teachers think I am a brilliant student who has expertise in every field. ठीक है, क्या हुआ भाई अनुज? हाउ कैन ग्रेट गुड परफॉर्मेंस इन फर्स्ट डे, आते हैं फर्स्ट डे पे भी आएंगे, डोंट वरी, है ना, एक बार 5 दिन का कर ले. तो ये होता है एसडीटी का सीन, फॉर्मेट होता है उसका. यू विल बी टेल अबाउट दैट. सर डिडंट वी लाई इन एसएसबी, लाइंग पे, सॉरी, लाइंग पे सब सब कुछ बताया जाएगा, लाइंग वगैरह का, है ना. अभी चलते हैं वापस अपनी टेस्टिंग पे.
तो वही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग खत्म हो गई. अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड नोट्स. Immediately after the psychological test on the second day, the interview starts. The batch is divided into groups, and depending upon batch size, some candidate may have interview on third and fourth day as well. They are normally conducted in the afternoon by the interviewing officer. You will be interviewed only once and will be informed about it in advance. The atmosphere throughout the interview is relaxed and informal. See, the last point may or may not be true, depends upon you and depends on the interviewing officer. The questions are generally based on your everyday experience. अब इसको हिंदी में बता देता हूँ. जैसे ही आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग खत्म होती है ना, कोई CHM या कोई जो भी वहाँ पे पोस्टेड बंदा होगा जिसको ड्यूटी मिली हुई होगी, वो आपको बता देगा कि ओके, चेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक के इंटरव्यू आज हैं, वे तैयार हो जाएं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उनको टी पॉइंट पे जाना है, उन सबको यहाँ रुकना है, उन सबको कैबिन में रुकना है. यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट. और उसी दिन से पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं. Coming up to GTE, that is group testing exercises, which includes your day 3 and day 4. Group discussion, group planning exercise, progressive group task, group obstacle race, lecture 8, half group task, command task, final group task, individual obstacles. These are the number of tasks that are taken under your group testing exercises. Let's get to know about them. चलो जानते हैं भाई ये क्या है. सबसे पहला आता है आपका ग्रुप डिस्कशन. भाई नाम ही बता रहा है कि ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना है. डिस्कस क्या और कब करना है, कैसे करना है. The first task of GTO battery of test begins with group discussion on a debatable topic, which is usually given on a current event, social issues. In the first group discussion, the group is allowed to select one of the two topics offered. तो GTO का जो पहला टास्क है, that is group discussion, वो भी दो होते हैं. उसमें भी दो ग्रुप डिस्कशन होते हैं. ओके, फर्स्ट वन में आपको दो टॉपिक बता दिए जाएंगे दैट आर बेस्ड ऑन द करंट इवेंट एंड सोशल इश्यूज. करंट इवेंट एंड सोशल इश्यूज कैसे? जैसे अभी आप जो भी नेट पे डाल दो कि ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग इंटरनेशनल न्यूज, ब्रेकिंग नेशनल न्यूज, वो ही एसएसबी के लिए करंट इवेंट स्लैश सोशल इशू बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यूसीसी आया अभी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम ऑफ यू मे नो अबाउट इट. ठीक है, चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है. ओ राइट, दो तीन चीजें और हो गई. ठीक है, सो जो जीटीओ होगा आपका, वो आपसे बोल देगा कि लिसन, दीज आर द टू टॉपिक्स एंड यू गाइस हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम वन. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट फ्रॉम वन? ही विल से रेज योर हैंड्स. सी ही मे मेक यू रेज हैंड्स, ही मे मेक यू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. वो एक अच्छा वो मिलता है इनिशिएशन का. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. आफ्टर दैट you will select a topic going with the majority of the group and you will discuss upon that, right? On the second GD, the topics of GTO's choice, वो अपना बोल देगा. Okay guys, now you will talk about the relation between India and China, or the relations between India and Pakistan, or the poverty stricken country Pakistan. Any topic he might give you, right? Each candidate is expected to participate in the discussions. Remember that the discussions involve the exchange of ideas and thoughts. It is not a traffic of words. It is not a traffic of words. मैंने बात दोबारा क्यों बोली? मैंने बात दोबारा इसलिए बोली क्योंकि भाई क्या होता है, सब उतावले होते हैं अपना अपना बोलने के लिए. सब अपना अपना बोलने के लिए उतावले होते हैं कि मुझे भी पॉइंट देना, मुझे पॉइंट देना. And it will create a traffic. Okay, it won't be helpful for you, it won't be helpful for the GTO in any way to assess you. वो आपको सुन ही नहीं पाने का भाई बोल कौन सा रहा है. ठीक है, सो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कशंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, राइट? जीडी हो गया. जीडी के बाद दिस इज व्हाट अ जीडी लुक्स लाइक. आई होप मैंने फोटोज ऐड कर दिए इन ऑर्डर की तुम लोगों को समझ आ जाएंगी. एज यू कैन सी इट इज 5 written here. It is the chest number. This is the attires: white shoes, white socks, white shorts, white t-shirts, and this is the chest number given to you. You will be made sit in a circular manner. You will talk to each other and discuss there. And the GTO may sit behind you. He may roam here and there. That is completely dependent. Next come the group planning exercises.
It is a second test of the GTO test series. In this test, a story on a model with a few problems is narrated. What you are required to do is to identify the problems and evolve the practical solution within the given time. फोटो के माध्यम से देखते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे एक ही ऐसी इशू दिखा दिया जाएगा, एक फोटो दिखा दी जाएगी, एक फ्रेम दिखा दिया जाएगा. यू आर मेड सिट इन अ सेमी सर्कुलर मैनर. ये आई डोंट थिंक ये एसएसबी की है क्योंकि इन्होंने चेस्ट नंबर नहीं पहन रखे. इट माइट बी फ्रॉम एनी कोचिंग. The GTO would be standing like this. He would first brief you out everything, right? Briefing. After the briefing, he will give you sample cards, and you will read a story out of them that is related to this image, to this photo, and you are given a set of problems that are happening. आपको इन फोटो में दिखने वाले जो भी चीजें होंगी उनसे रिलेटेड एक रजिस्टर को एक पेज दे दिया जाएगा जिन पे उसके बारे में कुछ लिखा होगा पहले. तो साथ साथ 3 से 4 प्रॉब्लम्स यू वुड बी गिवन related to what is happening in this image, है ना. After that, the sheets will be taken from you and you will be given a notepad along with a page and pen. You will write whatever was asked in the questions. There's a certain manner to write. Okay, you guys need not worry about it. We will explain it later. After that, the PGT starts. Progressive group task. It is the next GTO test. 4 obstacles are required to be collectively negotiated by your group along with a heavy load. Certain helping materials in the form of rope, planks, etc. provided for the task to be completed within 40 minutes. Ground rules will be explained to the candidates in detail before the commencement of the test. Make sure you and your group adheres to the rules strictly. Also remember that all of you are, and the load, especially the load, because people tend to forget that there is also load present, need to negotiate the obstacle together to move on during the test. बात आती है भाई पीजीटी की. आप पूरे ग्रुप के साथ खड़े हो गए अपने, उस ग्रुप में आपको फिर बोल दिया जाएगा कि ये दिक्कत है, ये आपके सामने इश्यूज हैं. फर्स्ट टास्क इज दिस and you are supposed to perform along with the group. You are supposed to perform along with the group. आपसे उम्मीद करी जाती है आप ग्रुप का समर्थन करते हुए चलेंगे. आप जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें अपने आइडियाज देंगे अगर आपको आ रहे हैं तो. ऑल्सो अगर आप आपके साथ वाले को आ रहे हैं और अगर आपको वो आपको कुछ करने को कह रहा है सो आप वो भी करेंगे. बिकॉज although it is a progressive task, it is one more important thing that it is a group task, guys, है ना. Here the GTO sees how you perform in a group. See, being a leader is an important thing, but a leader always knows how to work in a group. Understood? This is what PGT usually looks like. ऐसा ही दिखता है आपके सामने, ऐसा ही एक इशू क्रिएट होगा, आपको ऐसा ही कोई दिक्कत बताई जाएगी, साथ में हेल्पिंग मटेरियल और लोड दे दिया जाएगा, है ना. सी नाउ आप लोगों से एक उम्मीद तो होगी ही कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि कौन बच्चे आपको काम करते हुए दिख रहे हैं. दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस वन इज ऑल्सो लुकिंग समवॉट रिलेटेड टू हियर. देयर आर 4 पीपल स्टैंडिंग इन द बिहाइंड. 4 लोग पीछे खड़े हैं, है ना. अब यहाँ हाईलाइट कौन होगा? हाईलाइट ये होंगे. पीजीटी में आपको कुछ तो सामान दिया जाता है. as you can see there is a rope, there is a plank, जिसे फट्टा बोलते हैं हिंदी में, रस्सी है, बल्ली might be there, as well as there will be a load. यहाँ पर probably दिख नहीं रहा है but generally होता है, and the load needs to be carried along with you after the task completes. Or there are certain rules. As you can see, there are red lines, red markings everywhere. Sorry, not everywhere, somewhere. First of all, this you can see that no one is standing on the ground, right? Because ground is lava. It is generally said by the GTO that the ground is lava. You cannot step on it. The GTO may or may not say that.
as you, the white part is accessible. Okay, there is also another color, and that color is accessible for you but not for material. Okay, the red part is not accessible to anyone, and touching the red part, or there are other rules as well, falling, touching the ground, these all comes under breaking of rules. एंड ब्रेकिंग ऑफ रूल्स इज अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, बहुत गलत आइडिया जाता है. वो क्या करेगा भाई, जनरली देखो तुम, जीटीओ का मूड बिगाड़ देगा. एंड बिलीव मी, यू डू नॉट वांट द जीटीओ टू बी इन अ बैड मूड, क्योंकि फिर वो सुना भी देते हैं. ठीक है, जो एक्सपीरियंस जीटीओ होते हैं वो सुना भी देते हैं. फिर आता है जीओआर पे, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. अब ये भाई बहुत मजे की चीज है ना. Unlike other tasks, here the entire group competes with other groups of your batch over a set of 6 obstacles. Each group has to carry a roll of 10 stuffed gunny bags in the shape of snake from the start point to finish point. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ. इसमें माइट बी दैट की विजिबल नहीं होगा तुम्हें, बट ऐसा समझ लो कि एक टेंट होता है, टेंट रोल कर दो तो एक बड़ा सांप जैसा लगता है. सो उसको वो सब लोग लेके चलते हैं. इसमें भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं. रेड एरिया, an inaccessible area, the tent needs to be carried by at least 3 people at a time, है ना. Therefore, the task is commonly referred as snake race. The rules of race will be explained to you. The winner is the group that cover all the obstacles against the challenge posed by opponents. Not to forget to include time, obstacles, and load within the framework of rules of the race. After the race, there is a short 20 minutes break for rest and refreshment. None of your concern. आप बात सुनो GOR की, that is group obstacle race. आपको ऐसे कुछ कुछ टास्क दे दी जाएंगे. हेल्प से कूदना है, इस पे चढ़ना है. ठीक है, यू कैन सी देयर इज अ स्लाइटली रेड पोर्शन प्रेजेंट हियर बिटवीन दीज. दिस इज अनएक्सेसिबल पार्ट. ऐसा होता है, एक तरीके से चढ़ो उधर से, फिर उधर जाओ, कूद जाओ. दिस इज अनदर टास्क. यहाँ जूम नहीं हो पाएगा. यहाँ से 8 का शेप बना के निकलना होता है. दिस माइट बी अंडरस्टैंडेबल कि एक रस्सियां होती हैं, आपको उन पे चढ़ चढ़ के जाना है, उस साइड से उतरना है. इन सब चीजों के चलते हुए ये मोर ऑफ अ टास्क से ज्यादा ये एक एक्टिविटी होती है आप सबके लिए. वो एक्टिविटी आपको बताती रहेगी, बता दी जाएगी स्टार्टिंग में ही कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है. बीच बीच में रूल्स तोड़ने पे जीटीओ जनरली रोक के कह देता है 5 मिनट्स का ब्रेक है, 5 बार. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग कि यहाँ पे आपको अपनी वॉर क्राई डिसाइड करनी होती है. ठीक है, किसी ने जय भवानी कर ली, किसी ने जय बजरंगी कर ली, किसी ने जय हिंद कर ली, किसी ने दिल मांगे मोर कर लिया. वो आपसे उस टाइम पूछी जाती है, और वो आपको थ्रू आउट बोलनी होती है. सही चल रहा है क्या? ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड. कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट नीड नॉट. द फ्रेशर्स आर हियर. जो भी फ्रेशर्स यहाँ पर हैं उनके लिए बहुत मोस्ट बेनिफिशियल होने वाली है क्लास. रेस्ट के लिए भी आइडिया है, क्योंकि एंड में डाउट सेशन लिया जाएगा. यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. लेट्स कंटिन्यू. HGT. अब PGT में आपका एक ग्रुप देख लिया जाता है, बट जनरली क्या होता है, बिकॉज 10 to 11 to 12 मेंबर्स होते हैं, सो आपको असेस प्रॉपरली करा नहीं जाता, टाइम फ्रेमवर्क कम होता है. सो द ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 सब ग्रुप्स, एंड देन हाफ ग्रुप टास्क इज कैरीड आउट. सिमिलर हाफ ग्रुप टास्क जो होता है वो, उसमें पीजीटी जैसा कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, बट उसमें हाफ ग्रुप मेंबर्स होंगे, and they will get through the obstacle within a given framework of time. Rules would be same as the PGT. Next come lecturate. Lecturate is a very important topic guys, because उसका आप थोड़ा काइंड ऑफ प्रिपरेशन कर भी सकते हो, है ना. On completion of HGT, the GTO will conduct the task called lecturate. ओके, अब आपने लेक्चर भी सुना होगा, राइट. लेक्चरेट क्या होता है? सेम 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 चीज है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट सिगार एंड सिगरेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिगार एंड सिगरेट? दैट अ सिगार इज अ लॉन्गर वन. इफ यू हैव एवर सीन अ सिगार, सिगार बड़ी होती है, सिगरेट छोटी होती है. सिमिलरली लेक्चर बड़ा होता है, लेक्चरेट छोटा होता है. लेक्चरेट आपको जनरली 3 मिनट्स
को बोलने के लिए दिया जाएगा. 3 minutes are given to the candidate to prepare the talk, and thereafter speak for 3 minutes in front of group on the subject chosen by. This is the basic photograph. This is the basic visual of a lecturate. ये भाई हमारे खड़े हैं यहाँ पे, वो पीछे देख रहा है आपको रेबन सनग्लासेस में एंड कैप पहने हुए. ही इज द जीटीओ. और इनको सबसे पहले एक कार्ड दी जाती है, उसमें 4 टॉपिक लिखते रहते हैं. ऑफ अ हार्ड टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक, मीडियोकर टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक. ये 4 टॉपिक आपको दिए जाते हैं. यू आर सपोज टू स्टैंड अ डिस्टेंस फ्रॉम हियर. फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया था पेड़ के पास चले जाओ, 3 मिनट दिए जा रहे हैं, कोई सा भी एक टॉपिक चूज करो, उस पर बोलो, उसको सोचो. And after 3 minutes, there would be a ring beside him. There would be a bell beside him. He will ring that bell, and this person will sit, and the next one will go there, and the one who was present previously there will come here and give the lecture. वो फिर आके अपना बोलेगा जो उसने 3 मिनट में प्रिपेयर करा. Next come individual obstacles. Individual obstacle, there are 10 obstacles designed to test candidates' individual ability in negotiating them. You are given 3 minutes to negotiate as many as obstacles as possible on your own. If the course is completed within the time limit, you may repeat the obstacle of your choice. वो डिपेंडेंट है आपके फिजिकल कंडीशनिंग पे, आपके फिजिकल कितना स्ट्रांग है कि आप दोबारा वो कर पा रहे हो उसको अटेंड. 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं जनरली. You will be given a short break. Again, none of your concern. If your course is completed within the time limit, you may repeat. This is what individual obstacles looks like. There are 10 obstacles like this. They are marked with 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, and they hold their respective marks as well. This is double ditch. This is called commando walk. Okay. This small pair of stairs that the top might be loose from here in order to create a feeling of fear. This is called tiger leap. These kind of 10 different obstacles are presented in front of you, and you have to manage your time. You have to manage your physical capacitance and complete this within the time framework. And if you are able to complete, अगर आप तब सब के सब 10 के 10 कंप्लीट कर पा रहे हो एंड सीटी नहीं बजाई है जीटीओ ने, तो आप कोई रिपीट कर सकते हो. कमांड टास्क, a very 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 important task according to my opinion. The next task in line is the command task. Each member of your group will be put in command of the group in turn, the objective being completion of the specified task as commander of the group. You will be first briefed by the GTO regarding the task, and thereafter you will explain the task to your group as commander and give instructions to them and also monitor the completion of the task personally. होता क्या है, फोटो से देखते हैं. अब जीटीओ ने आपको ग्रुप की तरीके से देख लिया है, पीजीटी से, एचजीटी से, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस से, है ना. अब आपको एज अ सिंगल पर्सन असेस करेगा. स्टार्ट करता है लेक्चरेट के साथ. लेक्चरेट में आप सिंगल असेस करते हो, आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर देखी जाती है. सिमिलरली कमांड टास्क में भी यही होता है. ये देखा जाता है कि आप एज अ सिंगल पर्सन, एज अ लीडर कैसे वो करते हो. आपको 2 सबऑर्डिनेट्स बुलाने होते हैं अपने ग्रुप से, ठीक है. he might ask you reason why you are calling them, ठीक है. you should give a reasonable reason. ये मत बोलना भाई कि 2 दिन से उसने मुझे कल पार्ले जी का बिस्किट खिलाया था तो मैं उसे बुला रहा हूँ, है ना, और दूसरे वाले ने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी तो मैं उसे बुला रहा हूँ, ठीक है. रीजनेबल रीजन देना. he is physically fit, he is lightweight, he is heavyweight, ठीक है. as you can see there is a tank type of here, ठीक है. this might be the load. Okay, you are made the commander and you are presented with an issue that has come in front of you, ठीक है. आप कमांडर बना दिए जाते हो. फॉर एग्जांपल मान लो ये बंदा है, इसका कमांडर चल रहा है, इसने ये दोनों सबऑर्डिनेट्स बुलाए हैं, ठीक है. ये इनको या इनकी हेल्प से इसको ये टास्क कंप्लीट करना है. he is not expected to ask any idea from the subordinates, but if the need comes, अगर उसको जरूरत पड़ती है तो he or she should ask from his subordinate कि भाई तेरे को कुछ आइडिया आ रहा है तो बता दे. complete talk should be presented in English only. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि वो अब आपको 1-on-1 असेस कर रहा है जैसे मैंने बताया. और क्या होता है कि जब
हमारे साथ 5 बंदे काम कर रहे होते हैं तो हम पे प्रेशर नहीं होता, प्रेशर हम कम फील करते हैं। बट जब सिंगल पर्सन को असेस करा जाता है, जो पीछे बैठा जीटीओ देख रहा होता है, और आप अकेले काम करोगे, अकेले आइडिया दोगे, बाकी ये दोनों बिल्कुल चुप रहेंगे, सो यहाँ पर प्रेशर बनता है। और यहाँ पर स्ट्रेस फैक्टर देखा जाता है कि ये बंदा प्रेशर झेलने लायक है या नहीं, इसका प्रेशर में इसका दिमाग चल रहा है या नहीं, इज ही और शी एबल टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस, राइट? Then comes the final group task. As the name suggests, the last test GTO conducts is the final group task. Once again, the entire group gets together to complete an assigned task. इसमें एक single task होता है. This is the concluding task. अब ये क्यों होता है? मान लो भाई देखो, जीटीओ को 2 दिन के अंदर ही 10 10 तकरीबन बच्चों को असेस करना होता है। सो देयर इज अ चांस कि उसको एक दो चीज में डाउट लग रहा है, तो वो एफजीटी, दैट इज द फाइनल ग्रुप टास्क में पता कर सकता है कि क्या मुझे इसके बारे में कुछ जानना है, क्या मुझे इसके बारे में कुछ पूछना है, क्या मुझे जानना है कि ये परफॉर्म करता है या नहीं। ये सब चलता रहता है। सही चल रही है क्लास? जीटीओ के टास्क कंप्लीट हो गए हैं गाइस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार डूज एंड डोंट्स ऑफ जीटीओ। जीटीओ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि काफी सारे डाउट्स आ रहे होंगे आपके बीच में, आपके मन में, आपके जहन में। परेशान मत होइए, डोंट वरी, डाउट्स ले लिए जाएंगे। बट मैंने पहले भी बोला है, एक दिन में सारे एसएसबी के डाउट्स नहीं लिए जा सकते। हम आपके इश्यूज ग्रेजुअली रिजॉल्व करेंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट। टूल्स ऑफ जीटीओ: परसीव द प्रॉब्लम्स पोस्ट करेक्टली एंड सिमुलेट ऑल डिटेल्स। जितना डिटेल, जितना ध्यान से आप किस चीज को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उससे डिटेल बटोर सकते हो, उस तरीके से बटोरें। हैव एडिक्वेट awareness about general current affairs. Understood? Be quick enough to think and write solutions. क्योंकि टाइम एक ऑफिसर के पास, एन ऑफिसर इज नॉट सपोज टू वर्क आफ्टर गिवन प्रॉपर टाइम, ठीक है। आपसे उम्मीद नहीं रखी जाती कि भाई आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम आपको 10 मिनट दे देंगे, आप कर लो आराम से। नहीं, 15 सेकेंड, डू इट राइट नाउ। फास्ट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फौज में, वरना फौज में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बी स्पॉन्टेनियस एंड फोर्थराइट इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, पार्टिसिपेट एक्टिवली। अब क्या हो गया है कि लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट बोल के खुश होते हैं, ठीक है, अपने नाम रख लेंगे इंट्रोवर्ट 1 2 3, बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज अ पार्ट ऑफ शाइनेस, इट शोज दैट यू लैक कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। Understand the requirement of the task, plan and try to evolve, suggest workable ideas. प्लान करें, ठीक है, प्लान करके टास्क की जरूरत के अनुसार आइडिया सजेस्ट करें। कीप द ग्रुप एम इन माइंड। सी जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, नाम में ग्रुप आ रहा है, समटाइम्स इट मे बी ग्राउंड, बट स्टिल बहुत सारे टास्क ग्रुप में होते हैं, सो यू आर सपोज टू वर्क इन ग्रुप। Be confident and develop perseverance in pursuing the aim slash goal. Confident बनो, ठीक है। एम गोल को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आपको अपने आप पे होना। बी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। भाई तुम आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हो, तुम पे बोला जा नहीं रहा, फायदा क्या है ना। ये क्या चल रहा है आयुष भाई? ये चल रही है एसएसबी की इंट्रोडक्टरी क्लास। एसएसबी इंटरव्यू होता है एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, उसके टास्क बता रहा हूँ। बात आ जाती है डोंट की। डोंट ट्राई टू पुट प्री कंसीव नॉलेज आइडियाज, यूटिलाइज देम टू जनरेट योर आइडियाज। सी क्या हो गया आज के टाइम में, हर दूसरा बच्चा कोचिंग लेके चला जाता है और सेम वर्ड्स सेम लैंग्वेज वहाँ बोलने लगता है, जो जीटीओ साफ साफ समझ जाता है कि हाँ ये कोस्ट बंदा है, ठीक है। अब कोस्ट बंदे का क्या है, सी दे आर असेसर्स प्रेजेंट देयर, ओके, they are not fools, they can easily recognize that you are lying or not, right? they are made they are trained to analyze are you lying or not, okay. Utilize them to generate your own ideas. अब क्या करना है कि अपने खुद के आइडिया बताने हैं, ठीक है। डोंट सिट, स्टैंड बैक एंड वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम योर वे, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी।
यू आर नॉट सपोज टू स्टैंड आइडली कि मैं खड़ा हूँ भगवान के भरोसे, भाई जो होएगा हो जाएगा, ठीक है, टास्क से पहले बोल दिया जय माँ शेरा वाली और टास्क हो गए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टूड। एंड हियर आर वीडियो टेस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड्स। सही चल रहा है क्या भाई, बता दो। वीडियो ऑडियो में कोई इशू, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, लैंग्वेज का कोई इशू? बता दो एक बार चैट में, बता दो। नो इश्यूज, ऑल गुड ऑल गुड। चलो चलते हैं। ओके ओके ओके, ऑल क्लियर, गुड टू गो। इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू अलग चीज है, और जिस इंटरव्यू की हाँ बात हो रही है वो अलग चीज है। इंटरव्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ साइट टेस्ट, मैंने बताया कि उस दिन से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। डे 2 डे 3 डे 4 पे आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। 1-on-1 आपके असेसर के साथ इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। यू विल बी इंटरव्यूड ओनली वंस एंड विल बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस। आपको बता दिया जाएगा कि भाई चेस नंबर 1 से 10 का आ जाए, वो आ जाए, बाकी सब जाके रेस्ट करें, तैयारी करें आगे। Each candidate is interviewed for a duration ranging from 45 minutes to an hour. None of your concern. It might end in 40 minutes. It might end in. It might take more than an hour. Atmosphere throughout the interview is relaxed and informal. दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा no expect मत करके चलो। Interview है, कुछ भी हो सकता है। The questions are generally based on your everyday experiences and relating to your work. हाँ ये सच्चाई है। Education, family, spare time, activities, hobbies and interest. इन चीज़ों से, इन टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है कुछ कुछ, वो कम्प्लीटली डिपेंडेबल है, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। The interviewing officer will discuss by the way of questions and answers the opportunities you had in your life and utilization you made of them. जो आईओ होगा, जनरली आईओ कहते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, is fairly senior and experienced in the armed forces. While he interacts with you, he assesses whether you have the essential qualities to be trained to become an officer in the armed forces. क्या आप एक ऑफिसर बनने लायक है, ये वो अपने क्वेश्चंस के थ्रू इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछेगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस, what you have done till date with regard to academics or achievements, extracurricular activities, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट इन लाइफ, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल एंड मेंटल फोर्टिट्यूड, फॉर्म इंपॉर्टेंट facets to assist him in assessment. No one is perfect, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। No one is perfect. And the interviewing officer understands and gives more than adequate benefits for the shortcomings or mistakes which you may have committed. Thus, do not try and hide anything. Very important point, very important point. You need not try to hide anything, है ना? क्योंकि जो पीछे बात लिखी है कि रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जनरली आपको अपनी गलती सुधारने का मौका दे देते हैं। टेंडेंसी ऑफ लाइंग एंड मेकिंग फॉल्स प्रिटेंसेस is easily found and is viewed negatively. Easily found, viewed negatively. जैसा मैंने बताया, झूठ बोलना इजीली पता चल सकता है। जो ऑफिसर बैठा है भाई, वो ट्रेन बैठा है, वो वो पता कर सकता है कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है, और वो चीज नेगेटिवली ली जाती है। कमिंग ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ द इंटरव्यू। लुक स्मार्ट, चीयरफुल, एंथुसियास्टिक। भाई ये उदास मुंह का बंदा बैठा है, उससे क्या अच्छी वाइब आएगी? अच्छी वाइब कैसे आ सकती है उससे, है ना? सोचने की बात है। बी ऑडिबल बट नॉट टू लाउड एंड अपीयर कीन टू स्पीक एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जवाब देना है, राइट? If you have not understood anything, politely ask for clarification or to repeat the question. You are expected to be aware so as to touch upon current events fast. Sit straight, comfortably, do not fidget, do not keep moving your hands and legs as it may distract the interview from your response. हाथ कांपना, हाथ इधर होना, पसीने छूटना, गला सूखना, आवाज बैठना, these things generally conclude कि बंदा स्ट्रेस झेल नहीं पा रहा है, ठीक है?
ये चीज और ये अच्छी नहीं है। Now, types of questions asked in the interview. What is the meaning of your name? Tell me about your strengths and weakness. What do you want to be a part of the Indian Armed Forces? Why do you want to be a part? What qualities makes you fit for the Indian Armed Forces? ऐसे कई टाइप्स के क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि कैंडिडेट ये तैयार करके जाए। ओके, बट इस पे डिपेंडेबल नहीं रहना है, मैं फिर कह रहा हूँ। एनीथिंग कुड बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। अब बात आती है पांचवा दिन, कॉन्फ्रेंस। The last or the fifth day spent in the conference in the continuation of the process of selection. The day begins with the closing address. एक ऑफिसर आपको आने से पहले, ठीक है, कंक्लूड करेगा कि भाई आप लोगों की आज आखिरी एसएसबी है बेटा, ठीक है। जो कोई आज सिलेक्ट हो जाएंगे वेरी गुड, कीप इट ऑन। जो नहीं होंगे उदास ना होए। वो जनरली क्या होता है कि काफी सारे एसएसबी में बोलते हैं अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब ने एसएसबी दी थी, ये नहीं हुए, पर देखो कितने बड़े बड़े आदमी बने, है ना। आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी टू चिल यू आउट, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नहीं होना यार। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कभी परेशान नहीं होना। एक्सेप्टिंग फेलियर्स इज वन ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दैट इज नॉट मेंशन इन द टर्म OLQs इन डिफरेंट बुक्स। ओके, फेलियर हर किसी की लाइफ में आता है, एक्सेप्टिंग इज हार्ड, ठीक है। जो एक्सेप्ट करता है वो एक अच्छा बंदा माना जाता है। Closing address is generally given by deputy president of the board before board conference during the address of sir. Okay, none of your concern मैंने बता दिया। This is also interactive forum for you to put forward any problem. आपसे बोला जाएगा कि आपको 4 दिन के स्टे में, 4.5 दिन के स्टे में कोई दिक्कत हुई तो बता दीजिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ परेशानी आपको आनी, परेशानी आई आपको किसी तरीके से, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ऐसे जनरली नहीं आती है ऐसी कुछ। All the officers in proper uniform will attend a conference with each candidate. They will also have a conversation with panel of assessors. ऐसा दिखता है जनरली, ठीक है। ब्लर इमेज है थोड़ी, क्लियर मैं चाहो तो देख लेना नेट पे। कॉन्फ्रेंस में सारे ऑफिसर बैठे होंगे, ठीक है। काफी स्ट्रेसफुल माहौल लगता है। आपको बुलाने से पहले वे आपस में डिस्कस करेंगे। मेरा असेसमेंट ये रहा है कि ये बंदा ऐसा है, मेरा असेसमेंट ये रहा है ये बंदा ऐसा है। अगर किसी ने बोला कि मुझे इस चीज में डाउट है भाई, इसकी ये चीज देखनी है, तो वो चीज आपकी वहीं के वहीं देख ली जाएगी। The assessor will look for confidence and expression when speaking, a positive attitude in adversity and in life honesty. Following this, the final results are announced. Final results announce करे जाते हैं। Successful candidates will remain for an intensive medical examination. None of your concern for now. मेडिकल होता है, बाद में होता है। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस थोड़ा टाइम बाद आपको रिजल्ट सुना दिए जाते हैं कि ये बच्चे हो गए रिकमेंड, बाकी आप सब जाएं और जो हो गए हैं वो रुक जाएं। ऐसा कॉन्फ्रेंस का माहौल दिखता है। And that is how an SSB interview is conducted. Thank you so much from my side to allow me to tell you about all this. हाँ भाई, सही चल रहा है सब। So how was it guys? अब बता दो, ठीक थी मीटिंग, कैसी थी, अपने रिव्यूज दे दो। भैया आपने एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन किया? लंबी कहानी है, ठीक है आस्था, किसी दिन बताएंगे फ्री होके। अच्छा चलो, फ्री होके नहीं, जब आप लोग अपने रिस्पेक्टेड पेपर या इंटरव्यू क्लियर करेंगे तब बताएंगे, एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। अच्छा था भैया, पर मैं तो लेट आया अभी जस्ट। कोई नहीं, स्टे कनेक्टेड, ये फ्रीक्वेंटली हम क्लासेस देते रहेंगे। अविनाश डोंट वरी सर। अब हम लोग रिटर्न के साथ साथ क्या क्या प्रैक्टिस करते रहे, आपको गाइड कर दिया जाएगा, परेशान ना हो। अभी रिटर्न पे फोकस ज़्यादा करें, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ठीक थी क्या भाई, समझ आया सबको? वेरी हेल्पफुल, ओके ओके ओके। आपका एसएसबी का, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाऊंगा भाई, दिखा दूंगा भाई। डाउट के लिए माइक तो खोले भैया, मजा आ गया मिशन से।
फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट था मेरा सृष्टि। विल देयर बी एनी फर्दर क्लासेस? नॉट टुडे, अभी डाउट सेशंस लिए जाएंगे, क्लासेस आपकी हो जाएंगी। ठीक है भाई, मैं माइक खोल रहा हूँ। ठीक है, वन ऑन एक एक करके ही पूछना, हसल नहीं क्रिएट होनी चाहिए। विच एंट्री? एनडीए, एनडीए, एनडीए। हाँ भाई अमन बता भाई, क्या दिक्कत? खोल दिया ना मैंने माइक के साथ। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो माइक खोल के पूछ सकता है। हमारे रोहन सर भी प्रेजेंट है हमारे साथ। कोचिंग फॉर एसएसबी, महक। सी माई टेक ऑन कोचिंग इज, जनरली कोचिंग क्यों ली जाती है? बिकॉज हर दूसरा बंदा लेके जा रहा है। सो अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी है तो इट काइंड्स ऑफ पुट यू इन आ लोअर सिचुएशन की। बाकी सबको एक आइडिया है कि कोचिंग में क्या हो रहा है, वो एसएसबी में क्या होता है, आपको नहीं है। बट अगर आपको ओवरव्यू मिल गया है, आपको आज की क्लास से थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग लेके ही रिकमेंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग लिए बिना रिकमेंड नहीं होते। इट इज ऑल अबाउट एन ओवरव्यू। आपने कोचिंग ली थी, मैं हार्डली 7-8 दिन जा गया था कोचिंग में, मैं ज्यादा दिन नहीं गया, है ना। मैथ्स कौन सी बुक से करें? रिटर्न के सारे डाउट्स हमारे रोहन सर प्रेजेंट है, वो ले लेंगे। अगर कोई अभी की आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो बताओ, फिर कंक्लूड करते हैं इस मीटिंग को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर तो मुझे फर्स्ट डे के लिए थोड़ा डाउट है कि फर्स्ट डे में पीपीटी से पहले क्या होता है? पीपीटीटी से पहले यू आर सपोज टू प्रेजेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स देने को बोला जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, 2-3 फॉर्मूले भराए जाते हैं। उनके बाद उसके बाद लंच के लिए भेज देते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट के लिए भेज देते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद ओ आई आर, जैसे मैंने बताया, एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, एक रीजनिंग पैटर्न्स इन सब से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। अंडरस्टूड? उसके बाद साथ साथ आपको पीपीटीटी की इमेज दिखा दी जाएगी, यू हैव टू राइट द स्टोरी। उसके बाद पीपीटीटी का डिस्कशन होता है। समझ गए? ओके सर। मेरे फ्रेंड ने बोला था सेकेंड मंथ इज बेस्ट टाइम टू टेक कोचिंग इफ वी हैव 3 मंथ्स। सी दैट इज डिपेंडेबल। अब तुम 2 महीने पहले कोचिंग लेकर हो रहे हो और उस पे वर्क कर रहे हो, 2 महीने में भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हो, सो वो फाइन है। अगर तुम एक हफ्ता पहले भी लेकर आ रहे हो और तुमने उनसे सीखा कुछ नहीं है, सीख के भी आ गए तो रिवाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, जनरल अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, नॉट बेनिफिशियल। दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। अब बात रही कि इंग्लिश स्पीकिंग में, जैसे हमारे ग्रुप पे कई सारे बच्चों ने पर्सनली बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग में इश्यूज आते हैं, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ फैकल्टी, अ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम द इंडिगो कंपनी इटसेल्फ, जो आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश वोकैब में हेल्प करेगी आपको, राइट? एनी अदर डाउट, एनी अदर इशू? यस, रोहन सर ने बताया अभी अभी जल्द ही उनके साथ एक सेशन आने वाला है, दीपिका मैम। ठीक है, समझ आ गया भाई, सब टेंशन फ्री हो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आप मेडिकल इन थे? हाँ मैं मेडिकल इन था, महक। कंक्लूड करें एक बार फटाफट फिर। हाँ, सब्सक्राइब आवर चैनल्स, आपको सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहेंगी, आपको सारी इश्यूज वहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द फौजी कैंपस इज, सी वी डू नॉट वांट मनी राइट नाउ। AIR क्या थी? 345। You need not worry about anything. No fees, no, we do not want money from you guys right now. We just want you to perform well in the written and interview respectively. We just want results. You know.
एंड ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। आई फील मैं कर सकता